संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। नशा। जी हां, सही सुना आपने, नशा।
हर गली, हर नुक्कड़, हर दूसरी जिंदगी में नशे का ही जहर घुला हुआ है। आखिर क्यों? क्यों इतनी बर्बादी? क्यों अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोग इस मौत के कुएं में कूद रहे हैं? हम सब जानते हैं कि नशा सेहत के लिए जानलेवा है, फिर भी क्यों लोग इस नशे की लत को अपनी जिंदगियों में बसा लेते हैं? क्या नशा सच में हमें उन परेशानियों से मुक्त कर पाएगा जिनसे हम भाग रहे हैं? नहीं, हकीकत तो यह है कि नशा न सिर्फ हमारी समस्याओं को बढ़ाता है, बल्कि हमें हमारे अपने लोगों से भी दूर कर देता है। आज हम आपको मिलवाते हैं देहरादून, उत्तराखंड के रहने वाले राजन मेहता से, जिन्होंने नशे की लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राजन इतने ज्यादा नशा करते थे कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें दिल की बीमारी हो गई और उनकी पत्नी को भी दिमागी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिन राजन ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। उस सत्संग ने राजन की जिंदगी बदल दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ ला खड़ा किया हो। आज राजन नशे से कोसों दूर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी अब बिल्कुल ठीक है और उनका परिवार भी खुशहाल है। सोचने वाली बात है, अगर राजन जैसे लोग नशे की दलदल से बाहर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या हमारी समस्याओं का हल भी सच्ची भक्ति और ईश्वर की शरण में नहीं हो सकता? संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से जुड़ें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। याद रखिए, सच्चा सुख और शांति केवल भक्ति में है, नशे में नहीं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजन मेहता। राजन जी आप कहाँ से हैं? जिला देहरादून, ग्राम सहसपुर, तहसील विकासनगर। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 4 मार्च 2013 को नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने 1990 में राम रहीम से नाम लिया था। फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई थी। वो उसका इतना इलाज किया, एक टाइम की एक खुराक उसकी 400 कुछ रुपए की थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। फिर उसका इलाज चला, लेकिन फिर मैंने नाम लेते लेते 5 साल करीब नाम रखा वहाँ का। 5 साल के बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं कभी दारू तो मैं पीता था पहले, उसके टाइम पे फिर छोड़ दी थी। फिर मैं पता नहीं कैसे करके दारू का क्वार्टर लेके आया। मैंने एक गिलास में नीट करके वो दारू पी। मैंने कहा छोड़, कोई गुरु नहीं है। मैं वहाँ से फिर नाम छोड़ दिया। फिर मेरे को नाम छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे को काम मिल गया। काम भी नहीं मिल रहा था सर जी। तो उसके बाद जब मेरे को जो है काम मिल गया तो मैं काम लग गया करने। तो मेरी जो वाइफ थी, धीरे धीरे कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ के लगे कहने ये हो गया वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो जी फिर उसके बाद हमने नाम छोड़ दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने नाम नहीं छोड़ा। उसने 2013 में ही नाम छोड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ऐसा हुआ, कुछ वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, कुछ नाम लेके आए थे। मैं उनके घर पे कुछ लाइट का काम कर रहा था। तो वो लोग लगे कहने कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। मैंने कहा जी कहाँ ज्ञान है? मैंने कहा कहीं ज्ञान गुण नहीं है। मैंने कहा सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सत्संग उनके घर में बैठे बैठे देखा। देखने के बाद फिर मैंने घर में पता किया बेटे से। मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ साधना आता है? लगे कहने कि ना पापा। साधना चैनल कि ना पापा। मैंने कहा खुलवा लो। तब तक मैं घर से तक पहुँचा, तब तक उन्होंने साधना चैनल खुलवा लिया। मैं साधना चैनल देखा और साधना चैनल देखने को उस पर लास्ट में एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे खैर नाम नहीं याद रहा कौन भगत जी थे, वो अपने अनुभव बता रहे थे उनको कितना लाभ हुआ। फिर मैंने सर जी वहाँ पे देखा। मैंने रात को सोचता रहा पूरी रात। सिगरेट बहुत पीता था मैं। रात को मेरे ख्याल से 1 डब्बी खाली कर दी मैंने सिगरेट पी पी के। घर वाले भी कह रहे क्या हो गया आज। तो मैं सुबह 3 बजे उठा, नहाया धोया, एक बैग लिया, एक जोड़ा कपड़े का लेकर संत रामपाल जी के खोज में निकल चला। फिर मेरे को पता लगा हिसार बरवाला सतलोक आश्रम में पहुंचा। फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। आज तक हम ये काल की बगारी कर रहे थे, आज असली परमात्मा की शरण में गए कि असली भगवान है कौन दुनिया में। मेरे को लाभ हुआ, पहले मैं हार्ट पेशेंट था और उसके बाद फिर को मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों बाज़ार जा रखे थे। बाज़ार में जा कर के मेरे अचानक दर्द उठ गया और दर्द उठा, मैं लगा कहने, मैंने कहा चलो घर चलो। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, अच्छा जानकार है, तो उसके पास गया मैं स्कूटर उठा के। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया। लगा कहने, उसने चेक किया, बीपी बहुत हाई हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो लगा कहने कि आप देहरादून के लिए निकल जाओ, ये सरकारी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा तू घबरा मत, मेरे को जो है अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, असली पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं हम, घबरा मत, जो तेरे से हो सकता है वो करा। कि मेरे बस से हाथ, उसने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैं वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल आया। सरकारी हॉस्पिटल ने एक गोली दी, उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब रेफ़र कर दिया तो मैं बोला, मैंने कहा सब घबरा गए, बच्चे बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होता। तो एक गोली दी उन्होंने, मैंने जीभ के नीचे रखी, मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने नाम जाप, सतनाम मिला हुआ था, सतनाम का जाप शुरू कर दिया। मैं लगभग 11 बजे तक सतनाम का जाप चलता रहा। उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई मेरे को नहीं पता। सुबह 10 बजे गया मैं देहरादून हॉस्पिटल, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक। ACC करी उन्होंने, पहले तो दूसरे असिस्टेंट ने किया उनके डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर खुद आया चल करके, फिर उसने दोबारे से करी। फिर उसने करीब बोला कैसे आई तुम? मैंने कहा जी स्कूटर से। कैसे? मैंने कहा जी स्कूटर से आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या हो गया जी? अरे तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, ये है सो है। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने की उन्होंने कोर्स चलाया था, छोटी सी एक गोली चलती थी, वही खाता था सर। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, भक्ति पे बस ध्यान था, परमात्मा से नाम लिया है, बस संत रामपाल जी के शिष्य ही हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं जी। हम किसी दवाई को भी नहीं मानता जी, मैं तो किसी को नहीं। पहले इतना वो था, पहले अपने लाभ लेने के लिए मैं कुछ सट्टे के नंबर लेने के चक्कर में जो है मैं खुद चिल्ले खींचता था, बहुत चिल्ले खींचता था, नशे बहुत करता था, दारू बहुत पीता था, गुटके कम से कम 60-70 गुटके हो जाते थे, 2-3 डब्बी सिगरेट की हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी के शिष्य हुए, हम लोग उनकी शरण में गए, सारे ही नशे मेरे दूर हो गए, पता ही नहीं चला महाराज कहाँ चले गए। सर जी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने तो कि नशा होता क्या है। जहाँ मैं काम करता हूँ आर्मी में, वहाँ पे छोटे से काम के लिए अरे साहब आपको 1 बोतल दे देंगे, काम कर दो। अब मेरे को कोई कहता है कि मैं आपको 2 बोतल देता हूँ, तो मैं उसका काम ही नहीं करता। जो भी साहब है उसका मैं काम ही नहीं करता। मैंने कहा 1-1 हफ्तों से टांग देता हूँ, नहीं मैं जाता ही नहीं बोतल वाले के पास। मेरे को तो केवल अब मोक्ष का द्वार खुल गया हमारे लिए। परमात्मा ने संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे इतना नशा करता था वो मेरे सारे छूट गए। और मेरे को आगे जैसे पहले कोई काम नहीं पूछता था, अब तो काम के लिए भी दुनिया पूछने आती है कि राजन मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। मेरे पास 15-15, 20-20 आदमी काम करते थे IMA में, एकेडमी में, लेकिन मेरा ऐसा काम टूट गया था, अब मेरे पास काम की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं खुद ही काम करता हूँ। अब मेरे को अब भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ। पहले मेरा जो है छत नहीं होती थी घर पे, आज फर्स्ट क्लास नीचे परमात्मा ने टाइलें लगवा दी, कुछ नहीं पता कितना क्या करवा दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ठीक हो गई, जो मेरी हृदय की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। अब जो है जो मेरी इधर उधर के नशे जो थे वो भी सब मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप नशा भी करते थे, आपका नशा छूट गया।
तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर के वह लोग जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर जी यही कहना चाहते हैं कि इस धरती पे जो है साक्षात संत रामपाल जी के रूप में साक्षात कबीर साहब बैठे हैं आए हुए, उनकी शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, अपने जो है सारे नशे बिगाड़ जितनी भी थे सब दूर करो और इनकी शरण में आके अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलवा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सर जी बहुत ज़्यादा चैनलों पे जो है परमात्मा के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे जगह जगह के नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहां लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है और ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम सब घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए, इनके ऊपर वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें।
ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया, इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धर अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे, दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक, सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से ये को। और ये कहाँ से छपया है? ये प्रकाशक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड इतने। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ, सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेर बदल कर रहे। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी
सेवा नहीं करती, कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता। अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका ये आप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा। उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे वाला की तगा परम धनी। जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर एज ए कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा। वो बात कैसे करी फिर कबीर साहब दिखे कि जब बूंद मिल गई समुद्र में, वह अलग कैसे रहे? वो सच्चाई ये है कि वहां सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कुटे है, अरे के मैं इसमें धान झाड़ू हूं, तो महामूर्ख हो कहते घूटला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़ा, इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा। सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपन का भी दे रखा है और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, तो बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं।
सड़क किसे कहते हैं? कार कोई कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं? कार कोई शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं? कार कोई ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड हल्दी की गांठ पर पंसारी बन गए। और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण। आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है सत्संग होता है तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा घट रामायण में? 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की। बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहां से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान करहो में घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और छठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तक काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है? सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर कर रखा है। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम तक काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए अपना आत्माओं। अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक है, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये सामान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, और कोई चला जाओ, पैदल बैठो, चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो,
और 2 मिनट में पहुंच गए। तिरकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। तिरकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता है, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश बाग 4, महाराज सावण सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि 17वां श्लोक की गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। नगियो घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, एक कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर,
और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं। और 2 अक्षर का ये सतनाम है, ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है 1 अक्षर। वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही करें कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम, कि तो सचखंड सतनाम, कि तो सतलोक सतनाम, कि तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। अरीब ने कहा हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे एक जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा।
अब देखो, गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था? ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं, बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना दो शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं, आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती में चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सत्ज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं का समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र
में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਧੂ ਹੈ। ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੈਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ? ਮੈਂ 9 ਅਗਸਤ 2015 ਚ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਦਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਪਕ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਵੋਮਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਸ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਆ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਦਲ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਚਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਕੀ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 25ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਧ ਪੂਜਣੇ ਮਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਉੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂਗਾ ਭੂਤ ਜੋਨੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂਗਾ ਪਿੱਤਰ ਜੋਨੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਜੂਨ ਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੇ 80 ਲੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।